দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ঘরের কাছেই উন্নত আধুনিক চিকিৎসা এই হাসপাতালে। মস্তিষ্ক চিকিৎসায় গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে এক নজির সৃষ্টি করেছেন নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী। একসময় পথ দুর্ঘটনায় শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশে কেউ যদি মাথায় চোট পেতেন তবে তাকে দ্রুত কলকাতা রেফার করতে হতো, আর কলকাতায় নিয়ে যেতে যেতেই বহু মানুষের মৃত্যু হতো। ফলে পথ দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়া মানুষ জীবন সংশয় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় বিশিষ্ট নিউরোসার্জন ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী শিলিগুড়িতে এসে চিকিৎসা শুরু করেন এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাথার গুরুতর আঘাত পাওয়া লোকজনেরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শুরু হয়। শিলিগুড়িতে মস্তিষ্ক চিকিৎসার উন্নতি কীভাবে ঘটানো যায় তার জন্য সবসময় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন তিনি। একসময় শিলিগুড়ি SF রোডে গড়ে তোলেন তার নিজস্ব নার্সিংহোম। এই নার্সিংহোমের আরও উন্নত আধুনিক রূপ হলো আজকের থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস। ফুলবাড়িতে সেই থ্যালামাস ইনস্টিটিউট শুরু হয়েছে অল্প কিছুদিন হলো। মস্তিষ্ক চিকিৎসার এত আধুনিক ব্যবস্থা উত্তর পূর্ব ভারতে কোথাও নেই। ফুলবাড়িতে অবস্থিত থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে মস্তিষ্ক চিকিৎসার পাশাপাশি কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, জেনারেল সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সহ সব চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আগামী বছর থেকে স্ত্রীরোগ চিকিৎসারও ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। ডাক্তার মলয় চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে সেই নার্সিংহোমের বিশেষজ্ঞ নিউরোসার্জন ডাক্তার সাফিয়া আহমেদ রিজভি এবং ডাক্তার টিকানাথ শর্মা বলেন, দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার জন্য অনেকে দৌড়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণ ভারতে যাওয়া আসা, থাকা খাওয়ার পিছনে যা খরচ হয় তার চেয়ে বলা চলে অনেক কম খরচে ঘরের কাছে এখন উন্নত আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে। প্রতিদিন গড়ে সেখানে 2-3টি করে ব্রেন সার্জারি হচ্ছে। এমনকি রোগীর অবস্থা বেশি গুরুতর হলে রোগীর আগ্রহ অনুযায়ী মুম্বাই, দিল্লি থেকেও চিকিৎসকেরা ফুলবাড়ি থ্যালামাসে এসে চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। সে থ্যালামাস ইনস্টিটিউটে হ্যালিপ্যাড ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টাও চলছে। নতুন বছরে আরও নতুন ভাবনা, আরও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামছে এই থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস। আমার নাম আছে ডক্টর শফি আহমদ রিজভি, কনসালটেন্ট নিউরোসার্জন হিয়ার ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোসার্জারি, থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স। আর ইনি হচ্ছেন ডক্টর টিকানাথ শর্মা, ইজ এ ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট অ্যান্ড আইসিইউ ইনচার্জ। আর ডক্টর মলয় চক্রবর্তী স্যার, উনি একটু আউট অফ স্টেশন আছে ফর 2 days, বিজি শিডিউলের জন্য। তো একটা বছর শেষ হয়ে গেল, আরেকটা বছর আসছে, তো নতুন বছরের একটু কি মেসেজ দিবেন আপনারা? শুনুন, এখান তো হয়ে গেছে মোর দেন 6 month হয়ে গেছে, অলমোস্ট 1 year হতে যাচ্ছে। তো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি আমার প্ল্যানটা ছিল ওখানে, আপনারা জানেন SF রোডে ছিল আমার হসপিটালটা, নিউরো স্পেসিফিক হসপিটাল ছিল। রাইট। আমরা ট্রান্সফার হয়ে এখানে কমপ্লিটলি এখানে শিফট হয়ে গেছি। দেন উই স্টার্টেড এভরি ডিপার্টমেন্ট। নিউরো সার্জারি তো আমার কোর ডিপার্টমেন্ট আছে আমার হসপিটালের। তো আমরা যে স্টার্ট করেছি আদার ডিপার্টমেন্ট, সে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট, নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্ট, আদার স্পেশালাইজ জেনারেল সার্জারি, পেডিয়াট্রিক্স, অ্যান্ড একটাই ডিপার্টমেন্ট যে আছে ল্যাকিং, ওটা আছে গাইনোকোলজিস্ট। যে নিয়ার ফিউচার ইন দ্য নেক্সট ইয়ার আমরা প্ল্যান করছি যদি সেভাবে ঠিক থাকলে মেবি পসিবল কি নেক্সট ইয়ারে আমরা গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড অবস্টেট্রিশিয়ানের ডিপার্টমেন্টটা এস্টাবলিশ করব। তো আদার ডিপার্টমেন্টের একটু কথা বলি আমি, পার্টিকুলারলি নিউরোসার্জারির পরে একটু বলবো স্পেসিফিক্যালি যে আদার ডিপার্টমেন্ট যে আছে কার্ডিওলজি। তো রাউন্ড দ্য ক্লক আমার কার্ডিওলজিস্ট এখন আছে একদম গুড টিম উইথ গুড কার্ডিয়াক সেন্টার লাইক ক্যাথেটারাইজেশন ল্যাব, যে ক্যাথ ল্যাব বলে, যেখানে ইন্টারভেনশন সব কিছু একদম কমপ্লিটলি হাইলি ইকুইপড আছে, সব কিছু হয় এখানে। সেখানে আছে যে নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টও আছে আমার উইথ ডায়ালিসিস ইউনিট কমপ্লিটলি। আচ্ছা, সেকেন্ড আছে, থার্ড আছে কে জেনারেল সার্জারি, জেনারেল মেডিসিন, অর্থোপেডিশিয়ান, রাউন্ড দ্য ক্লক সব ডিপার্টমেন্টের অলমোস্ট আমার কমপ্লিট আছে। ঠিক আছে, তো নেক্সট ফেজ যে আছে আমার, তো নিউরো সার্জারি অ্যাজ পার দ্য নিউরো সার্জারি আমি বলবো যে আমার দুটা কম্পোনেন্ট হয়তো, একটা তো এমার্জেন্সি সার্জারি, রাউন্ড দ্য ক্লক আমার সব টিম নিয়ে থাকে, ফ্রম হেড টু টু উই হ্যাভ অল দ্য ডিপার্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিস। তো নিউরো সার্জারি নিয়ে আমার যে প্ল্যান আছে, যে এমার্জেন্সি সার্জারিটা হচ্ছে ইলেকটিভ সার্জারি নিয়ে আমরা যে বলি, ইলেকটিভ সার্জারির জন্য একটু আলাদা ধরনের থাকে, টিম তো থাকেই থাকে, এক হাই ইকুইপড একটা ওটি থাকে, যেনার ওরা মাইক্রোস্কোপ, ভালো কোয়ালিটির মাইক্রোস্কোপ আমার দিকে আছে, এটা একদম এটা নিডেড। সেকেন্ড আছে মাইক্রোস্কোপ ছাড়া উই হ্যাভ এ ড্রিল সিস্টেম আছে, উই হ্যাভ এ টিউমার সেকশন বলি, একটা মেশিন বলে টিউমার দিকে শাক করে আমরা বের করি। ঠিক আছে, দেন আমাদের কাছে আছে ড্রিল সিস্টেম, আমাদের কাছে আছে সিয়াম ফর স্পাইন সার্জারি। তো এখন যে আছে আমার দিকে নিউরো সার্জারির জন্য কমপ্লিট টিমের পরে কমপ্লিট একদম এনভায়রনমেন্ট নিয়ে ইকুইপমেন্ট আছে, হাইলি করে আপডেটেড
ওটিটা আছে আমার কাছে, ঠিক আছে। তো সের জন্য এখন যে মেন আছে যে মেসেজটা আমি দিতে চাই যে এখন আপনার চ্যানেলের জন্য আমি পাবলিককে বলতে চাই যে ফর ইচ অ্যান্ড এভরি টাইপের যে পেশেন্ট আছে, কমপ্লিকেটেড টু কমপ্লিকেটেড যে জিনিসগুলো আছে, ব্রেন টিউমার নিয়ে, আদার ভ্যাসকুলার নিয়ে, হেমারেজ নিয়ে, এইদিকে যে স্পাইন সার্জারি নিয়ে সব কিছু আতে পারে, আমরা সার্ভিস দেবো। অলরেডি আমরা দিচ্ছি, এখন ডে বাই ডে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট করছি, ঠিক আছে। তো এটা মেরা মেসেজ আছে কি আদার ডিপার্টমেন্টও আছে, আর আমাদের সার্জারি যে নিউরো সার্জারি স্পেসিফিক আছে এগুলো আস্তে 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 করে অনেকটা উপর দিকে যাচ্ছে। তো এটা মেসেজ আমরা দিচ্ছি। न्यू ईयर्स में क्या सोच रहे हैं, क्या नया कुछ प्लान क्या आ रहा है आप लोग? न्यू ईयर्स में प्लान यही है कि जो मेरा जो वैस्कुलर सर्जरी है, खास करके स्कल बेस्ड सर्जरी, एक होता है कि ट्यूमर सर्जरी के लिए खास करके हम बोलना चाहेंगे जो स्कल बेस्ड सर्जरी जो होता है उसके लिए हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और वैस्कुलर सर्जरी के लिए तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग इसको अपग्रेड करना चाहेंगे। ये हम लोग का प्लान है। इसके लिए हम पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, आप लोगों के थ्रू से हम बोलना चाहेंगे पब्लिक को कि वो लोग थोड़ा अवेयर हुए, और टाइम टू टाइम हम लोग कुछ प्रोग्राम करें। आप लोग भी आएंगे बीच बीच में, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम करके हम लोग को पब्लिक को एजुकेट करें कि क्या क्या करना चाहिए। और एक्सीडेंट का जो ब्रेन है हमारे, उसका तो वो तो है ही। वो तो ऑलरेडी चल रहा है। हम तो बताए कि एक तरह से दो तरह का हम लोग का सर्जरी का ये होता है, एक तो इमरजेंसी सर्जरी, एक होता है इलेक्टिव सर्जरी। इमरजेंसी सर्जरी में तो एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, राउंड द क्लॉक, अब नाइट हो डे हो। तो हम लोग का तो पूरा टीम है, ब्रेन एक्सीडेंट, ब्रेन ट्रॉमा से लेकर के बाकी फेशियल है, चेस्ट इंजरी है, एब्डोमेन है, लिम इंजरी है, तो सारा हमारा टीम है। वो लोग तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हेमरेज होता है वो भी कभी कभी बहुत इमरजेंसी होता है, तो रात में हम लोग को करना पड़ता है। तो यहाँ का मतलब हम लोग का सिलीगुड़ी का अगल बगल में, जैसे कि बिहार, उधर में बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम का पार्ट, इन लोगों का और साउथ में जाना नहीं पड़ेगा कुछ? इसके लिए तो हम लोग प्रोग्राम और भी पहले से ही हम लोग कर रहे हैं, और भी हम लोग करना चाहेंगे, बिकॉज यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोगों के अंदर एक इस तरह का फीलिंग है कि हम साउथ इंडिया जाएंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा, यहाँ नहीं होगा। जबकि सब तरह का सर्जरी, सब तरह का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है। जैसे अभी भी हम लोग के पास ऑपरेटेड एक पेशेंट है, एडमिटेड पेशेंट है, बड़ा ब्रेन ट्यूमर है, ओल्फैक्टरी ग्लोब मेनिंजियोमा, जो कि बहुत बड़ा होता है। अभी हम लोग लास्ट वीक किया है, सर और डॉक्टर मलय सर और हमने 7.5 घंटा लगा है ऑपरेशन करने में, और परफेक्टली पेशेंट नॉर्मल है अभी। तो एक उसको एक बड़ा ट्यूमर ब्रेन के ऊपर होता है, ओल्फैक्टरी ग्लोब मेनिंजियोमा कहते हैं, वो सामने होता है। उसके लिए क्या, किसी का अंधा हो जाता है, नाक का जो गंध सूंघने का जो कैपेसिटी था वो चला जाता है, हेडेक होता है, बेहोश हो जाता है। बहुत ह्यूज बड़ा सा मेनिंजियोमा था, ट्यूमर था, जो कि ऑपरेट किया है, 7.5 घंटा लगा है। पेशेंट अभी बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है, 1-2 दिन में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको। तो इस तरह का हम लोग का यहाँ हो रहा है। अभी उससे पहले एक बड़ा सा एक एन्यूरिज्म बोलते हैं हमको, वैस्कुलर सर्जरी, जो कि ब्रेन के अंदर होता है, नस फूल जाता है, वो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही डेंजरस होता है। वो फटने से ज्यादातर लोग बचता नहीं है। तो हम लोग के पास आया, हम लोगों ने ऑपरेट किया, वो उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। उसको कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बिग एन्यूरिज्म, तो उसको हम लोगों ने ऑपरेट किया है। तो इस तरह का ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्जरी जो है ना हम लोग यहाँ करते हैं, सीरियस से लेकर के सीरियस तक, कॉम्प्लिकेटेड से लेकर कॉम्प्लिकेटेड तक, विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्जरी। ब्रेन ट्यूमर हो और ब्रेन का वैस्कुलर सर्जरी हो, जैसे एन्यूरिज्म या फिर एवीएम या इस तरह का कुछ भी, स्पाइन सर्जरी हो, स्पाइनल ट्यूमर हो, स्पाइनल ट्रॉमा हो, सब तरह का सर्जरी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यही एक मैसेज देना है पब्लिक को। डेली कितना सर्जरी हो रहा है अभी? या ऑन एन एवरेज जो हम लोग का एवरेज रहता है टोटल 65 to 70 टोटल मंथ में रहता है हम लोगों का सर्जरी का टोटल लेकर के। अच्छा, ठीक है। वहाँ से जो एसएफ रोड में, हाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने के बाद कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है? अभी तक थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, वहां पर भी अच्छा ही हो रहा था, लेकिन और भी अभी प्रोग्रेस तो हो रहा है। डेली ऑन एन एवरेज 2-3 सर्जरी यहाँ होता है, कभी कभी तो 4-5 भी हो जाता है, इस तरह का चल रहा है। और एक तो बात पहले हुआ था, जो
जो हेलीपैड सिस्टम का उसका काफी हेलीपैड सिस्टम का अभी अब चल रहा है, अभी काम चल रहा है। अभी तक फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है हेलीपैड। वो होने से तो बाहर से भी डायरेक्टली जो इमरजेंसी पेशेंट होता है, क्योंकि ब्रेन सर्जरी में खास करके ट्रॉमा पेशेंट में, तो उसमें तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको टाइम नहीं देगा। कहा जाता है 4 आवर्स आर द गोल्डन पीरियड। अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, विद इन 4 आवर्स अगर ऑपरेट करते हैं और मैक्सिमम 6 आवर, तो उसका रिजल्ट बहुत डिफरेंट होता है अगर आप 6 घंटे के बाद करते हैं उसका इसी वजह से जो बहुत दूर का एरिया है, जैसे उधर हुआ काफी रिमोट एरिया से, खास करके जैसे असम हुआ और सराउंडिंग एरिया हुआ, कहीं से भी अगर ऐसा कुछ होता है, सीरियस होता है, अगर वो एफोर्डेबल है ऐसा, तो अर्जेंटली ट्रांसफर करके हम लोग उसको कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग का प्लान चल रहा है ये। कब तक हेलीपैड सिस्टम लगभग? अभी में भी 1 साल तक हो सकता है, नेक्स्ट ईयर के एंड तक या और जैसे कि दिल्ली से कि मुंबई से भी कुछ डॉक्टर लोग यहाँ पे आने का बातचीत हो रहा था वो। हाँ, बीच बीच में एक टीम होती है, टीम वर्क होता है ना, कुछ कभी कभी आते हैं, हम लोगों का गैदरिंग होता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लोग का डिस्कशन होता है, ये होता रहता है हम लोग का। तो लोग भी ओपीडी पे ओटी कभी कभी वो लोग, जैसे कुछ स्पेसिफिक केस आता है तो हम लोग हम लोग करते हैं साथ में। और कुछ मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि आपके थ्रू से हम सारा पब्लिक को, वेस्ट बंगाल और सराउंडिंग जितना पब्लिक है हम लोग का, इसको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग घबराइए मत और हम लोग पे विश्वास कीजिए और हम लोग का वर्क देखिए यहाँ पे आकर के, ठीक है, और विदाउट एनी हेजिटेशन के, विदाउट एनी डर के, ठीक है, आप लोग उधर का जो रुख करते हैं साउथ इंडिया का, वो थोड़ा हम लोग अवॉइड करेंगे और हम लोग अच्छा से अच्छा हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, वो एफोर्डेबल के कॉस्ट, सब कुछ देखना पड़ता है हम लोगों को। ऐसा सिस्टम, ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है कि साउथ में कभी भी जाने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। मोर देन 95% ऑफ द केसेस। हाँ, 5% केसेस में क्या होता है कि जैसे इस एरिया में फंक्शनल सर्जरी एक टॉपिक होता है, जो कि ट्रेमर होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, या फिर पार्किंसनिज्म होता है, उसके लिए अभी हम लोगों का इस एरिया में सेटअप नहीं है, तो उसके लिए हम लोग भेज सकते हैं। अभी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में कभी कभी हम लोग वहाँ पे जब सेंटर था तो हम लोग भेजते थे बाहर, जैसे क्वाइलिंग करने के लिए। जो इंडोवेस्कुलर क्वाइलिंग करते हैं, वेस्कुलर एक स्वेलिंग होती है ब्रेन में, जहाँ पे तार अंदर से घुसा करके उसको बंद करता है, तो अभी तो हम लोग के पास वो भी फैसिलिटी आ गया है, ठीक है। हम लोग तो इसी वजह से 90% ऑफ द केसेस में हम लोग अब रेफर नहीं करते हैं। यही एक मैसेज है। और ये हमारे सर हैं डॉक्टर TN शर्मा, ये सर कुछ बताएंगे। नमस्कार। नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, बिहार सब लेके और ये सेंटर देखें, ये सेंटर ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अभी हमारा सेंटर का जो है, मतलब अगर आप देखें तो ये सेंटर जितना एडवांस है, शायद इंडिया में बहुत ही कम जगह में है। लोग सोचते हैं कि यह छोटा जगह है, क्या ये नहीं है। यहाँ नॉर्थ बंगाल में दिस इज द मोस्ट एडवांस न्यूरो सेंटर, स्पेशल न्यूरो सर्जरी के लिए वन ऑफ द मोस्ट। यहाँ से अगर यहाँ जितना भी आप हो सकता है बॉम्बे दिल्ली में कुछ अलग हो पाए, दिल्ली कलकत्ता में, वो भी 5% केसेस में, लेकिन बाकी चीज़ सब हम लोग यहाँ वी कैन डू इट एंड पीपल। हम चाहते हैं कि लोग बिलीव करें हमसे, आए आप हमारे काम देखें, ठीक है, काम देखें, वो देखने के बाद लोगों को खुद पता चल जाए यहाँ क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। ये एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग। और न्यूरो सर्जरी छोड़ के यहाँ पर जैसे कार्डियक का सर ने बात किया है, कार्डियक में हम लोग एडवांस सब काम हो रहा है। एडवांस कार्डियक कैथ लैब्स जो अभी हम लोग एटलीस्ट महीने में 5 से हम लोग स्टेंटिंग होते हैं, स्टेंटिंग जो हार्ट में स्टेंट बढ़ाते हैं, 5 से 7-8 स्टेंट होते हैं। एंजियोग्राफी तो हम लोग हर रोज ही होता है। दूसरा चीज़ है हमारे यहाँ जो डायलिसिस है, एडवांस डायलिसिस यूनिट है, यहाँ पर हमारे यहाँ डॉक्टर गोले जो आप वो यहाँ इज अवेलेबल हियर ऑल्सो, इज अटैच्ड विथ अस। जो ये नेफ्रोलॉजी के लिए हमारे कोई चिंता नहीं है। और दूसरी डिपार्टमेंट लाइक पल्मोनोलॉजी है, वो भी हमारे पास है। जनरल मेडिसिन तो है ही, वी हैव ए वेरी हाईली स्किल्ड ICU, ये चीज़ है। और दूसरा ऑर्थोपेडिक्स भी है, अपने एडवांस ऑर्थोपेडिक्स सब कुछ यहाँ हम लोग करते हैं। वी हैव
ये छोड़ के, और दूसरा है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जो ये चमड़े का जो फ्रैक्चर वगैरह होता है, तेरा जो है हाईली स्किल एडवांस टीम हम लोग है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारा ये मकसद ये है इसका, बेसिकली जितना भी लोग बाहर जाते हैं, उन लोग बाहर जाने में, सिर्फ बाहर जाने में मतलब ये नहीं है, बाहर जाने में क्या देखते, फैमिली का सब फैमिली से चला जाना पड़ता है, एक आदमी से नहीं होगा, अनेक आदमी जाते हैं, आपको घर में काम भी बंद करना पड़ेगा, फिनेंस का भी ज्यादा रहता है। अगर यहाँ रहते घर के सामने, यू हैव एवरीथिंग, घर में बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और विद सेम फैसिलिटीज वॉट एवर इज अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया में जितना भी फैसिलिटी हमारे पास है, सब कुछ है। यही हमारा एक मैसेज यही है, लोगों पब्लिक को यही देना चाहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज है, आप घबराइए नहीं, कहीं भी इंडिया में कहीं भी कुछ भी जगह हो, या उसी के मुताबिक हमारा जो सेंटर है हाईली एडवांस है, फैसिलिटी वहाँ जितना मिलेगा वहाँ भी, यहाँ भी यही मिलेगा, यही मिलेगा। खर्च भी ज्यादा, खर्च तो कंपेरेटिवली कम है, आपको जाने आने का खर्चा भी नहीं लगेगा, हैरेसमेंट भी नहीं है, लोकल जगह या कोई झूठ बोलने का भी नहीं है, लोकल दूर की जगह के आप, हाँ ठीक है, उस जगह आप वहाँ जाओ, वहाँ जगह दिखाओ। यहाँ तो लोकल जगह में आप अपना हिसाब से काम जान पहचान हो जाता है। दिस तक ये चीज है। इंश्योरेंस का कुछ फैसिलिटी, अब इंश्योरेंस का फैसिलिटी वी आर, अभी नया है, अभी ग्रेजुअली मे बी विद इन 1 month और 2 month थोड़ा कुछ हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा, मे बी अनदर 6 month इंश्योरेंस फैसिलिटी एवरीथिंग विल बी देयर। और दूसरा है कि जैसे NABS का जो फैसिलिटी होता है, NABS का वो भी अराउंड विद इन 6 month विल बी एबल टू डू इट। दूसरा जो है, जो कैंसर के बारे में अभी चर्चा हो रहा है, उसका थोड़ा कुछ कैंसर के लिए, बेसिकली कैंसर के लिए हियर वी डू कैंसर सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेन का, स्पेशली ब्रेन का कैंसर सर्जरी। ये तो ब्रेन का कैंसर सर्जरी हम पहले भी करते हैं, अभी कर रहे हैं, वी डू एवरी डे। जैसे अभी भी एक पेशेंट अभी भर्ती है, वो भी कल परसों में करेंगे। एवरी वीक वी डू 1 or 2 ब्रेन का कैंसर सर्जरी होता रहता है। अच्छा। इसे कम यहाँ पर बेसिकली वी डू कैंसर सर्जरी, उसके बाद उसके बायोप्सी आने के बाद वी रिफर किया आसपास में, वी हैव नाउ 2 कैंसर सेंटर हियर इन सिलगुड़ी, वहाँ पर वी कॉल देम, वी कांटेक्ट देम, दे विल कम एंड सी द पेशेंट, असेस देम, एंड वहाँ पर भी हम रेडियोथेरेपी का हेल्प करते हैं। बस न्यू ईयर 2025 आने वाला है, क्या संदेश देंगे? इसमें संदेश यही है, अभी जो हम लोगों का सेंटर, इस शतक का 25 साल होने वाला है। हाँ, इस एकविंश शताब्दी जो बोलते हैं, उसका 25 साल होने वाला है, इसीलिए कुछ स्पेशल, कुछ ये तो एक नया चीज है जो यहाँ पे इतना अच्छा एक सेंटर खुला है। लोगों को क्या संदेश बोलेंगे? लोगों को संदेश एक ही है, हम लोग हेल्दी कैसे रहें, इन्वायरमेंट कैसे ठीक रखें, पोल्यूशन कैसे कम करें, हाउ कैन वी लिव इट एट पीस विद ऑल दिस थिंग्स। संसार में हर जगह में देयर इज टर्मोइल, बट हाउ कैन वी लिव इन पीस, यही संदेश है। और हेल्दी कैसे रहें और रूटीन कैसे मेंटेन करें, ये हमारा संदेश है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।